लेट्स भाई बयानबाजी। बयानबाजी में मैं महेश सिंह आपके साथ और बात करते हैं उन खास अहम बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी दुनिया के देशों से अमेरिका में माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोक लगाने की बात कही है। उन्होंने बाइडेन सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जो अवैध रूप से देश में आए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि इससे अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ट्रंप ने कहा कि वे उन सभी विदेशी नागरिकों को हटाएंगे जो देश के लिए खतरा या बोझ हैं और अपने देश को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। What do you mean by reverse migration? It means get people out that are in our country. Get them out of here. I want to get them out. We got a lot of people in our country that shouldn't be here. And they came in through Biden. And he was the worst president in the history of our country. But the single biggest thing he did was allow millions of people into our country that shouldn't be here. Drug dealers, prisons were opened up and allowed to come into our country. You take a look at the people that were allowed to come into our country. We're paying a big price for it, and we will for years to come, including the recent killer of two wonderful National Guards people. And I'll tell you what, that animal should not have been allowed to come into our country. नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बांग्लादेश के वर्तमान दौरे को अस्थायी बताया है। उन्होंने कहा है कि वे अभी भी बांग्लादेश को सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही देखेंगे। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के भविष्य के लिए चुनावों का इंतजार करना होगा। त्रिपाठी ने कहा कि मैं एक सदा आशावादी हूं और मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश के संबंध में स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते पुराने और गहरे हैं। I would still refrain from calling Bangladesh anything other than friend, because this could be only a temporary and transitory moment. We'll have to wait. The elections have to happen, and then something else can happen. So we'll I think reserve our comments on Bangladesh. I still feel that we are training them here. I just met the Bangladeshi officer cadets who just passed out from NDA in the morning, and in fact, my first visit after becoming chief was to Bangladesh. I was supposed to go to some fancy capital, and I said, no, I must go to my first partner, which is Bangladesh. And there was tremendous warmth, tremendous hospitality, tremendous nostalgia about what India did. So I'm an eternal optimist, and I hope that things will turn around as far as Bangladesh is concerned. एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने जनरेशन जेड और अग्निवीर के बारे में कहा है कि जनरेशन जेड भारत की सोच विकसित करने वाली पीढ़ी है जो तकनीकी रूप से दक्ष, तेजी से सीखने वाली, इनोवेशन में सक्षम और पहल से भरपूर है। इसके साथ ही अग्निवीर नौसेना को एक अनोखा आयाम देते हैं। इंडियन नेवीज वर्कफोर्स इज शेप्ड बाय टू एलिमेंट्स, जेन जी लीडर्स एंड अग्निवीर्स। टू माय माइंड, Gen Z is India's thinking generation. They are technologically adept, agile in learning, quick to innovate, and full of initiative. In fact, during the recently concluded Ops Swavlamban, there was a team from INA which demonstrated what they have developed. Our responsibility is to channelizing their energy, curiosity, and ingenuity into outcomes that strengthens our war-fighting edge. And I always tell this to the next generation of leaders that this is going to be one of the leading leadership challenge. It is for this reason that on the sidelines of Naval Commanders Conference in October this year, we conducted the informal brainstorming forum called Sagar Manthan, bringing together thinkers that included industry leaders, academic and veteran officers to discuss on grooming young leaders to operate amongst the flux of what I said, geopolitics, technology, and tactics. The aim was simple: learn the best contemporary practices, unlock fresh ideas for conveying youthful energy into purposeful capability. On the other hand, our Agniveers add a unique dimension to Navy.
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक सटीक और पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि असम में सही और वास्तविक मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके। एसआईआर पर एक कार्यशाला में उन्होंने ये बात कही। कार्यशाला में बीजेपी के नेता तरुण चुग और ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे। We had a workshop in presence of our National General Secretary Sri Tarun Chugh, as well as National Secretary Rituraj Sinha, regarding upcoming special revision of voter list. We discussed threadbare and we discuss among ourselves how BJP should work, how BJP should cooperate with the Election Commission in preparing a correct and authentic voter list for Assam. पश्चिमी बंगाल में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने पर टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे नाम बदलने का अधिकार किसे है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा है कि अब जबकि यह लोक भवन है तो क्या राज्यपाल का पद भी लोकपाल हो जाएगा? I do not know whether he has the authority to rename it, and as I found in the newspapers and as I heard him saying that this will be done by the central government, he has got a nod from the positive nod from the central government. I do not know. He has changed the name. How he has changed, I do not know. It's just ahead of 2026 assembly election where many allegations came against Raj Bhavan. No, I don't know Lok Bhavan. Now it's Lok Bhavan. So everyone has to, every Lok has to go there, and it's open for everyone. Honorable Governor, I do not know what, he is changing his name also, I do not know. His name also has to be changed because he is Rajyapal. Therefore it is Raj Bhavan. So now Lokpal to kya hoga? Lok Bhavan to kya Lokpal hoga? Will it be Lokpal? I do not know. Then there will be a senior Lokpal and a junior Lokpal. I do not know. I do not know. I do not want to enter into this issue, and I do not want to answer these questions about him. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियां दिल्ली के लाल किले तक पहुंच चुकी हैं, तो यह देश की सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। तिवारी ने कहा है कि देश के कई हिस्से मजबूत सुरक्षा उपायों के कारण तुलनात्मक रूप से सुरक्षित हैं। उनकी सरकार तो कह रही है एसआईआर को रिफॉर्म मानेंगे तो हम बात करेंगे। बीएससी की मीटिंग राज्यसभा की हुई है, उसमें क्या कुछ रहा? देखिए, मैं आपको साफ साफ कह दूं, जो स्ट्रेटजी कमेटी में हुआ है, जो संपूर्ण विरोध के दलों की भावना है कि चुनाव सुधारों पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा होनी चाहिए, हो भी चुकी है, तो वो कानून के अनुसार हो सकती है, उस पर चर्चा हो, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली के लाल किले तक अगर आतंकवादी गतिविधियां पहुंच गई हैं तो देश का कौन सा हिस्सा सुरक्षित है? कानून व्यवस्था भी हमारी, महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को, जहां पे भाजपा शासित राज्य उनके साथ दूसरा बर्ताव, जो भाजपा शासित राज्य नहीं उनके साथ दूसरा बर्ताव, तो ये सारा हमारा आधार है। कल 10 बजे हम सभी दलों के फ्लोर लीडर के साथ बैठक करेंगे और रणनीति बनाएंगे। कर्नाटकों को लेकर कोई चर्चा, कोई, क्योंकि बार बार कही जा रही थी कि इस तरीके की ये पार्लियामेंट कैसे रन करें, राज्यसभा और लोकसभा, इस पर स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक थी। ठीक है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सोहम सर्कल इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थायी नागरिकों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें फिर से इस चौराहे पर लोगों से मिलने का अवसर मिला है। सांघवी ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मेरे मत क्षेत्र के सोहम सर्कल चौराहे पे आज मजूरा मत क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधियों के साथ ये क्षेत्र के नगरजनों को मिलने का आज अवसर प्राप्त हुआ। आमतौर पे इसी प्रकार से मैं मेरे मत क्षेत्र के लोगों से मिलता रहता हूँ। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आज वापस सोहम सर्कल के इस चौराहे पे
आसपास के सब नागरिकों को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और इसी प्रकार से हम मुक्त मन से मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे से चर्चा करते आए हैं सालों से और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी मैं मेरे मत क्षेत्र के लोगों के साथ मिलता रहूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और खास तौर पे ये क्षेत्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, कॉरपोरेटर्स और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और खास तौर पे मैंने देखा आज भी कि सभी कॉरपोरेटर्स और यहाँ के क्षेत्र के नगरजनों के बीच में जो लगाव है, जो प्यार है, वो अद्भुत है। यही दर्शाता है कि ये सभी लोग बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और उनका और मेरा परिवार का रिश्ता है और मैं ऐसे ही सबको मिलता हूँ और आज भी इसी प्रकार से लोगों को मिलने आया था। कोई सजेशन दिया गया है या काम करने के लिए? खास तौर पे जब लोगों के बीच में जाते हैं तो इतना बड़ा क्षेत्र है तो समस्याओं का हल भी निकालना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो लोगों की समस्या भी हम तक पहुंचे उसी के लिए ये प्रयास होता है। तो ऐसी बैठकों में छोटी मोटी समस्याओं की भी जानकारी मिलती है और वही समस्या भी आज मैंने सुनी है और खास तौर पे जो चुने हुए प्रतिनिधि है कॉरपोरेटर्स वो रेगुलर उन लोग के संपर्क में और वही संपर्क के माध्यम से हमें माहिती मिलती है और वो माहिती के आधार पे हम लोग काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि आने वाले समय में पार्टी का नया नेतृत्व संगठन को और मजबूत करने का काम करेगा। उन्होंने कहा है कि युवा और सशक्त नेता सरकार, संगठन और जनता के बीच मजबूत कड़ी का काम करेंगे। विक्रमादित्य ने कहा है कि पार्टी को मजबूत बनाना ही हमारा एकमात्र मकसद है और मिलकर आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। अध्यक्ष बने हैं और मुझे विश्वास है वो आने वाले समय में आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे और संगठित करेंगे। सरकार, सत्ता और प्रदेश के आम जन के बीच में एक मजबूत कड़ी का काम करेंगे। वो एक युवा नेता है, मजबूत नेता है, 3 बारी के विधायक रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो संगठन को मजबूत करने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। जहाँ पर भी वो हमारा सहयोग मांगेंगे हम पूरा दिल खोलकर उनका समर्थन करेंगे। पार्टी को मजबूत करना हम सबका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र एजेंडा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने उनको हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर राजनीति में लाया, इस मुकाम तक पहुंचाया और मुझे विश्वास है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और जो भी चैलेंजेस आते हैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, हर तरीके के चैलेंजेस आते हैं, उसको हम मिलकर निपटेंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। युवाओं की भागीदारी। शिवसेना सांसद मिलिंद देओरा ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा है कि यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ऐतिहासिक विधायिका ला रही है, जिसे हम स्वागत करते हैं। पार्टी और सरकार के बीच जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग हुई। पार्लियामेंट का जो सेशन है, कल से विंटर सेशन शुरू होगा और शिवसेना की तरफ से, हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से हमारे जो आकांक्षाएं हैं, महाराष्ट्र की जनता की जो आकांक्षा है वो हमने रखी और ये सेशन मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि इसमें कुछ ऐतिहासिक विधेयक सरकार ला रही है जिसका हम स्वागत करते हैं। एक जन विश्वास बिल है जो आम जो सुविधाएं हैं जनता के लिए उन्हें अधिक आसान बनाने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग, ऐसे चीज़ों को गारंटी देने के लिए एक जन विश्वास बिल सरकार ला रही है। एटॉमिक एनर्जी बिल ला रही है जिससे भारत की जो ऊर्जा उत्पादन है वो उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। तो मैं मानता हूँ कि, और मैंने सभी सांसदों से ये निवेदन किया कि इस पर हमें एक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। लोगों की जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं लेकिन एक होकर हमें काम करना चाहिए क्योंकि सांसद जो है, भारत की जो संसद है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। एसआईआर का जो विषय है, सभी राजनीतिक दलों ने आमतौर पर इसको उठाया, चर्चा की मांग। देखिए, हमारा बयानबाजी में आज इतना ही।
जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।